Hello friends. Today I start a new topic, that is heat transfer. As you know that the heat transfer as a chemical engineering, the heat transfer is very important subject. So this heat transfer series, this is a part one video. In this video I'll discussing about the basic of heat transfer. So if you follow the books of the heat transfer for gate purposes or other exams, so you can go through the whole में, या फिर आप डॉक्टर सुखात्मे की बुक भी आती है, वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, या DS कुमार की या आर यादव की भी आती है, उसको इनमें से कोई भी बुक आप जो है फॉलो कर सकते हो. सो वाई टू स्टडी हीट ट्रांसफर इंजीनियरिंग. सो हम लोग बेसिकली इंजीनियरिंग में हीट ट्रांसफ़र का स्टडी क्यों करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व विद हीटिंग और कूलिंग विच रिक्वायर हीट ट्रांसफर. Of course, if you do the job in the factory or in industry, you know there is a condensers is there is a heat exchangers, or there is a PHEs, plate heat exchangers. So in this there is a heat transfer is there, so it is used for the optimal designing of heat exchangers. Third point, for a better process engineer, we should have a sound knowledge and understanding of the principle, mechanism and applications of heat transfer. Of course, the fourth point is the design of chemical plant is done one of the basis of heat transfer and analogous to the mass transfer operation. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज अ बेसिक की पॉइंट्स वाई टू स्टडी द हीट ट्रांसफर इंजीनियरिंग. कई बार इंटरव्यूज़ में पूछ देते हैं कि हीट ट्रांसफ़र का रोल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है केमिकल इंजीनियरिंग में, तो आप बता भी सकते हो उस पॉइंट से भी. सो आगे क्या है, हीट इज़ एनर्जी इन ट्रांजिट विच ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एनर्जी इज़ इन स्टोरेज फॉर्म कैन नेवर बी हीट. सो अगर मैं बात करूँ हीट क्या होता है, तो हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है, लेकिन किस फॉर्म में, जब वो ट्रांजिट होगी, जब वो सफ़र कर रही होगी. ठीक है, किस कारण टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो उसको हम लोग हीट बोलेंगे. अगर वो स्टोरेज फॉर्म में है तो वो हीट नहीं है, वो एनर्जी हम बोलेंगे उसको. ठीक है. सो बेसिकली क्या रहता है कि काफ़ी कन्फ्यूजन्स रहता है कि व्हाट इज़ द थर्मोडायनेमिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है, कि बेसिकली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द थर्मोडायनेमिक्स एंड द हीट ट्रांसफर. सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सो पहले मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लेता हूँ. तो बेसिक जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ. इट डील्स, थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम फेनोमेना विच it calculates the amount of heat transfer supplied to the system and remove from the system to change the state from one equilibrium state to the other equilibrium state. Basically in thermodynamics it provides the causes of heat transfer. Thermodynamics able to find the amount of heat transfer between the two equilibrium state, but thermodynamics get failed to find what time required to reach from initial state to the final state, where the thermodynamics get failed. So heat transfer की बात करते हैं. It is not a equilibrium phenomena. First of all, it provides modes of heat transfer or how the heat is going to transfer. It provides the temperature distribution profile with the object, and also determine how fast and how slow the heat is going to transfer. And it means the heat, it defines the rate of heat transfer. In designing of the equipment, the rate of heat transfer is important rather than the amount of heat transfer. This is a basic difference. Basically thermodynamics हमको amount of heat transfer बताता है, वो ये नहीं बताता कि हमको किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रही है, वो अमाउंट के बारे में बताता है. थर्मोडायनेमिक्स में क्या रहता है, रेट इंपॉर्टेंट रहती है. ठीक है. दिस इज a basic difference between the thermodynamics and heat transfer. So what is heat? Heat is the energy in transit which transfer due to temperature difference. ठीक है. सो एप्लीकेशंस ऑफ हीट ट्रांसफर्स में आप लोग नोट कर सकते हैं. अपने बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया, प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में हो गया, न्यूक्लियर पावर इंडस्ट्रीज़ में हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में हो गया. दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ द हीट ट्रांसफर. ठीक है. सो टेम्परेचर्स की बात कर लेते हैं.
टेम्परेचर का क्या सीन है कि टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी काउजेज बाई मॉलिक्यूल्स. इट मीन्स temperature is a measure of amount of energy caused by molecules. It measures the degree of hotness or coldness of that object. Temperature is also used to determine the direction of heat transfer because heat is always transferred from high temperature to the lower temperature. ठीक है. So the basic what is heat I'll discuss. The basic of the heat transfer, why the heat transfer is important in the chemical engineering or engineering. और मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र देख लेते हैं. बेसिकली देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र. फर्स्ट वन इज़ कंडक्शन, सेकेंड वन इज़ कन्वेक्शन, थर्ड वन इज़ रेडिएशन. सो अभी तो हम लोग जो है थोड़ा बेसिक देख लेते हैं. व्हाट इज़ कंडक्शन, व्हाट इज़ कन्वेक्शन, व्हाट इज़ रेडिएशन. हम लोग अब फर्स्ट देखेंगे डिटेल से कंडक्शन. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग वन बाई वन से स्टार्ट करेंगे. तो कंडक्शन की बात कर लेते हैं. कंडक्शन इट टेक प्लेस इन सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस. कंडक्शन जो है, ठीक है, बेसिकली कंडक्शन जो है सॉलिड में भी देखने को मिलेगा, लिक्विड्स में मिलेगा, गैसेस में भी मिलेगा. इट इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स टू द एडजेसेंट लोअर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स without appreciable or without bulk motion. Conduction can take place in all phases, solid, liquid, gases. For conduction to be take place in fluid, there should be no macroscopic movement in the fluid. It means there is no bulk motion within the fluid. Okay. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन. तो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन में जो फर्स्ट है, जैसे सॉलिड्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो सॉलिड्स में भी क्या आता है. सॉलिड्स में एक तो लेटिस वाइब्रेशन आती है फर्स्ट, सेकंड आता है फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो ठीक है, इन द केस ऑफ मेटल्स, सॉलिड्स में भी हम लोग अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो इन द केस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो है हीट कंडक्शन इज dominates by flow of free electron as you show in the figure over the lattice vibration, while in non-metal the lattice vibration will more dominate over the flow of free electron. ठीक है, बेसिकली जो सॉलिड्स में क्या रहता है, एक तो लेटिस वाइब्रेशन की वजह से जो है, दूसरा फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह होता है. फ्लूइड्स का केस क्या है, फ्लूइड्स के केस पे भी देख लेते हैं. तो बेसिकली mechanism of conduction in fluid, in the liquid and in the gases the mechanism of conduction is same. ठीक है, एक तो मॉलिकुलर डिफ्यूजन के बेसिस पे होगी, दूसरा मॉलिकुलर कोलिजन बिकॉज ऑफ थर्मल एनर्जी. सो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं गैसेस के कंपेरिजन में ज़्यादा क्लोज होते हैं ऑफ कोर्स. ठीक है, तो बेसिकली कंडक्शन इज हाईएस्ट इन द सॉलिड, लीस्ट इन द गैसेस. ठीक है, ये भी आप लाइन बोल सकते हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है. तो बेसिकली तो फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन हम लोग जो है देख लेते हैं क्या होता है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर द हीट ट्रांसफर, स्पेशली कंडक्शन में बात करते हैं. तो इसमें 2 पॉइंट्स रहते हैं. पहला पॉइंट कहता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट. सेकेंड पॉइंट रहता है रेट ऑफ द हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है, सो बेसिकली क्यू एक्स को मैं एक साथ लिख सकता हूँ ए एक्स डी टी अपॉन डी एक्स. ठीक है, दिस क्यू रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्यू एक्स मैंने इसलिए लिख रहा हूँ कि एक्स डायरेक्शंस की बात कर रहा हूँ. इसको बाई में भी लिख सकते हो आप, जेड में, तीनों डायरेक्शन से लिख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है. तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्यू विच इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ गया, ए एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स, वेयर अकॉर्डिंग टू द फोरियर्स लॉ ए एक्स क्या है, एरिया नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर एट एनी गिवन एक्स. के एक्स क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इन एक्स डायरेक्शन. ठीक है, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है एज अ टेम्परेचर डिक्रीजेस. बेसिकली जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या है वो डिक्रीज करता है. एज यू कैन सी देयर इज एक्स, देयर इज वाई, देयर इज जेड. सो बेसिकली जो फ्लक्स है वो, जैसे कि फ्लक्स हम लोग ने वो तीनों डायरेक्शंस के अंदर निकाल सकते हैं. के इज़ अ ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. फ्लक्स कैन बी डिफाइंड एट एनी पॉइंट. सो क्यू एक्स
फ्लक्स क्या होता है बेसिकली, क्यू एक्स, इसको स्मॉल क्यू से नोट करते हैं, कैपिटल क्यू अपन ए रेस डिवाइड करेंगे तो फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने अलग अलग जो है प्रोफाइल्स बना रखी हैं। तो पहली प्रोफाइल अगर आप देखेंगे, मैं एक्स और वाई के बीच में जो मैंने पहली टेम्परेचर प्रोफाइल जो ड्रॉ की है, दिस इज क्यू एक्स, हीट ट्रांसफर हमारे इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो यार क्यू एक्स हो जाएगा माइनस के एक्स डेल टी अपॉन डेल टी। सेकेंड मैंने प्रोफाइल बना रखी है, दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई, हीट ट्रांसफर हमारा इधर हो रहा है, ठीक है। हीट ट्रांसफर हमारा इधर हो रहा है, मतलब क्या, ये T1 हो गया, T2 हो गया, T2 से T1 हो रहा है ना, तो यार क्यू एक्स की वैल्यू हो जाएगी के एक्स प्लस ए एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। तो दिस इज माइनस की जो बात कर रहे थे वो यही है और कुछ नहीं। सो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम वाई डायरेक्शन में भी लिख सकते हैं, माइनस के वाई ए वाई डेल टी अपॉन डेल वाई, क्यू जेड माइनस के जेड ए जेड डेल टी अपॉन डेल जेड, ठीक है, तीनों डायरेक्शन। तो बेसिकली फ्लक्स जो है वो हम क्यू एक्स लिख सकते हैं, क्यू एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स, क्यू वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई अपॉन ए वाई माइनस के वाई डेल टी अपॉन डेल वाई, और इन फ्लक्स के टर्म में हम लिख सकते हैं तीनों डायरेक्शंस में, ठीक है, माइनस के जेड टी अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स की बात करता हूँ, इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, सो बेसिकली क्यू जो होता है वो दैट इज क्यू एक्स आई, क्यू वाई जे, क्यू जेड के, ठीक है। तो मैं यहाँ जो है फ्लक्स की वैल्यू रख दूंगा, दैट इज के एक्स डेल टी अपॉन डेल एक्स, दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा बनी, अगर हम लोग ने बेसिकली जो है वेक्टर मैंने डिस्कस किया हुआ है मैथमेटिक्स वाले पार्ट में, तो बिल्कुल वही है। अगर आपने वहाँ पे अगर मेरा मैथमेटिक्स वाला अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं स्पेशली वेक्टर्स, तो ये चीज़ें करने में बिल्कुल कुछ नहीं रहेगा। हीट ट्रांसफ़र का रूल सिर्फ वहीं तक था, और बाकी दिस इज़ अ मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स। सो बेसिकली दिस क्यू को मैं इन टर्म्स ऑफ माइनस के, अगर आपने वहाँ पर डेल पढ़ा है, डेल ऑपरेटर, तो ये वैल्यू हमारी जो है आई डेल टी अपॉन डेल एक्स जे डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल टी अपॉन डेल एक्स को मैं डेल लिख लूँगा, और टी तो हमारा चल ही रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ फोरियर्स लॉ बट इन द वेक्टर फॉर्म, ठीक है। दिस इज अ मैथमेटिक्स, नथिंग एल्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं, वो देख लेते हैं। स्पेशल केस, पहला केस हो जाता है इफ एरिया इज कांस्टेंट, if area is constant in all direction, it means ax ay az बराबर a, यही तो है कहने का मतलब। सेकंड केस किया जाता है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी है या थर्मल कंडक्टिविटी भी हम उसको बोलते हैं, या मटेरियल प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो कांस्टेंट, एक मिनट, थर्मल कंडक्टिविटी इज कांस्टेंट, देन हम इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, के एक्स के वाई के जेड बराबर के द मटेरियल विच प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज विद डायरेक्शन इज कॉल्ड आइसोट्रॉपिक, ठीक है। फिजिकल मीनिंग ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? Physical meaning of thermal conductivity, it is a intrinsic property of material which is a measure of ability of material to conduct the heat. The material having high value of thermal conductivity can causes the higher heat transfer as compared to the material having lower value of conductivity. So basically conductivity show करता है कि जो मटेरियल है वो कितना हीट ट्रांसफ़र देगा। अगर जो मटेरियल है, मान लो कोई मटेरियल है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र देगा लोअर वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मल कंडक्टिविटी, और इसमें कुछ पार्ट और रह गया, वो भी कवर कर लेते हैं।
बेसिकली स्पेशली होता क्या है, देखो हमारे गेट्स में या अदर PSUs के जो एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली आते हैं ज़्यादातर वन डायमेंशनल। फॉर वन डायमेंशनल में फॉर वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो इसके रेट ऑफ जो हीट ट्रांसफ़र है दैट इज़ फोरियर्स लॉ, दैट इज़ के ए हो जाएगा, सीधे डेल की जगह dt/dx हो जाएगा, ठीक है। दिस रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसकी यूनिट जो है बेसिकली जूल पर सेकेंड है। ये रेट जो बूंदी लगी हुई है ये पर सेकेंड शो कर रही है, जिसको हम लोग वॉट भी बोलते हैं, पहली चीज़। दूसरा क्या, दिस एरिया ऑफकोर्स हमारे मीटर स्क्वायर में रहता है। डेल्टा टी है जो टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड में होगा। डेल्टा एक्स ऑफकोर्स मीटर में रहेगा, ठीक है। और रही बात के की यूनिट जो रहती है वॉट पर मीटर पर केल्विन, ठीक है। दिस इज यूनिट्स हो गई, यूनिट्स से पूछ लिया जाता है कभी कभी, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम जो दिस इज़ द फोरियर्स लॉ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स क्या होता है ज़्यादातर वन डायमेंशनल में ही आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन हमको पता होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं देखो थर्मल कंडक्टिविटी की एक तो डेफिनेशंस ये हो गई थी कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, यानी कि द प्रॉपर्टी विच इज़ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द हीट। द मटेरियल हैविंग हाई वैल्यू ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी काउजेज द हायर हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। एक तो वैल्यू ये हो गई थी। अगर मैं क्या करूँ, एरिया को यूनिट कर दूँ, डेल्टा टी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूँ और डेल्टा एक्स को 1 मीटर कर दूँ, यूनिट ले लूँ, तो इस के की वैल्यू क्या हो गई, क्यू हो गई, हो गया ना इस फार्मूले से। इस फार्मूले से मैंने ए की वैल्यू 1 रख दी, डेल्टा टी की वैल्यू 1 रख दी, इसकी वैल्यू 1 रख दी, दिस क्यू से कस टू के हो गया ना। तो जो बेसिकली के इज़ डिफाइंड, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशंस, एज रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ROT मतलब रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मैं पूरा ही लिख देता हूँ, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र through the material having unit thickness, unit area and unit temperature difference, ठीक है। this is the second definition based on the Fourier's law, ठीक है। और बेसिकली डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन इज सेम, ठीक है। डिफरेंस इन डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन इज सेम, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये लाइन, तो ये भूलना नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक ऑफ द हीट ट्रांसफ़र, दिस इज़ बेसिक ऑफ द फोरियर्स लॉ। सो फोरियर्स लॉ मैंने बता दिया, पूरा कंप्लीट है। आगे पार्ट्स में हम लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी, और मेटल्स में देखेंगे नॉन मेटल्स में थर्मल कंडक्टिविटी का क्या फ़र्क पड़ता है। एलॉज के लिए जो एलॉय होती हैं, जो कह सकते हो आप, जो मिक्स करके जो मटेरियल बनाए जाते हैं, जो एलॉय होती हैं, उनकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या फ़र्क पड़ता है। गैसेस के लिक्विड्स के लिए क्या रहती है, क्योंकि थर्मल कंडक्टिविटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं। दिस इज़ द बेसिक ऑफ द हीट ट्रांसफ़र। कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, कोई सजेशन हो तो बताइए, और चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बाय।